शाहरुख खान और आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म डियर जिंदगी का पहला टीजर रिलीज हो गया है। लगभग 1.5 मिनट के टीजर में शाहरुख आलिया को समुंदर के पास कबड्डी खेलना सिखा रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री खूब चर्चा में रही है। बता दें, फिल्म में आलिया एक फिल्म मेकर और शाहरुख उनके कोच का रोल प्ले करेंगे। आलिया शाहरुख के अलावा आदित्य रॉय कपूर, अली जफर, अंगद बेदी और कुणाल कपूर फिल्म में अहम रोल निभाएंगे। बता दें, गौरी शिंदे के डायरेक्शन में बनी फिल्म डियर जिंदगी 25 नवंबर को रिलीज होगी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय। Thank you. I think we make a good match. Really? I think. अभी तो मैं स्टेज पे आई हूँ, we already make a good match. I'm just thinking. सोचने में बुरा क्या है? नहीं, सोचने बुरा नहीं है, अच्छा है. If you feel like it's a match, it's a match. It's a match, absolutely. Well, my first question to you, considering आपने इतनी छोटी उम्र पे, you've done so many films. एक फिल्म में आप किडनैप होती हैं, एक फिल्म में आप प्यार ढूंढती हैं, एक फिल्म में आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर होती हैं. अब इस फिल्म में मतलब जिंदगी के बारे में कुछ अलग ही ट्विस्ट है. So tell us about your role. मतलब not butter chicken roll or paneer roll. That was a very bad joke. हाँ, I know कि मेरी कैरेक्टर को एक हैबिट है कि वो बहुत बुरे जोक्स मारते हैं, but you don't need to compete with Kaira. Kaira can just be the one to crack the bad jokes. By the end of this night, we will see who cracks the worst jokes. Okay, you're competing? I'm done. Done. Finalized here. और जैसे? Amazing. So this film is जैसे कि आपने कहा कि डियर जिंदगी के बारे में है. It's about everything that you go through in life. मेरी कैरेक्टर का नाम है कायरा. She's a 20-something girl. Young है, restless है, passionate है, moody है, टेढ़ी है, सब कुछ है. और कभी कभी लाइफ में क्वेश्चंस होते हैं और हम किसी को ढूंढना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं. Sometimes we talk to our friends, sometimes our family, and sometimes we talk to, in my case, Dr. Jahangir Khan, urf Jug. Love had too much of the second. अच्छा. And stuck in the third. Now you're acting like a celebrity. एकदम precisely सही जवाब देना. Come on. तो क्या बोलूं मैं? French fries कैसे लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है French fries. और मेरा क्या कहना है आपका? क्या कहना है? What do you think? You're nice. Okay. You're very nice. On that note, ladies and gentlemen, we just stop the show over here. Can we go ahead? Come on, we can go ahead. Okay, we'll go ahead. We'll discuss this later. Well, so what we can do is let's take a fresh look at the swipe right to Zindagi from your perspective in the film, from Kaira's perspective. तो काम करते कायरा की perspective से let's take a look at this new. कि मैं क्या swipe right करूँगी, क्या swipe left करूँगी. So let's do that. जैसे Tinder पे करते. हाँ, ठीक उसी तरह. Like how we do it on Tinder. देखते हैं क्या है options. दिखाओ. Alright. Serene beaches, right. Right swipe, excellent. Next one. Butter chicken, please. मैं vegetarian हूँ, left. Please next. किसने बोला? Vegetarian होना अच्छा होता है कभी-कभी. Hold on, right. Right. Game of Thrones, amazing. चॉकलेट्स अगर खाना है तो इसमें फिट नहीं हो सकती हूँ, so left please. Oh. मैं जा रही हूँ. I didn't mean it like that. ये मतलब तुम यार मेरी बेइज्जती कर रहे हो? नहीं, but आप क्या कहोगे? Come on, this is great. मैं मौन व्रत ले रही हूँ. आलिया मौन व्रत. क्या मैंने बोला? मौन व्रत. नहीं, मौन व्रत नहीं, मैंने मौन व्रत हूँ. Okay. सुनाई दे रहा है, my voice is husky. अच्छा, ये क्या करते हैं? Next one please. Next one please. ये तो बनता है. Right.
Amazing. See, we make a match. Oh, Biggest right. Next. Chuck Bass. Right. Right. क्या ये cockroaches? Cockroaches. ये कौन cockroaches को right swap करेगा? Left? ये mirror selfie. नहीं, I don't like mirror selfie. Left. Bodybuilder. Gee. I mean, no offense to bodybuilders, but personally in a guy मुझे ये bodybuilder type body अच्छा नहीं लगता है. हाँ. No offense, bodybuilders आप बहुत great हो, but मुझे थोड़ा सा lean अच्छा वाला मशीन चाहिए तो लेफ्ट. ओह, इनका क्या करें? ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं. अट्रैक्टिव. वो तो है ही. अब क्या करें? अब दिल का मामला है, राइट करना ही ये पड़ेगा. लीन है, मीन है. अच्छी मशीन भी है, राइट. ओके, सो राइट एंड इन्हें Right. लाइक करें, सुपर लाइक करें, क्या करें? आई थिंक क्या करें? कर दे राइट. कर दे. तो आई थिंक अगर ये है तो अगर ये आलिया के मिस्टर राइट हैं तो इन मिस्टर राइट को भी बुलाना बनता ही है स्टेज पर. लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कुणाल कपूर. I've super liked you. Yeah. तुम्हारा माइक. ऊ से औ तक. Alright. माइक हमेशा नहीं चलता. हाँ, ओके. यस. हाँ, क्या? अभी नहीं, हमने आपको लीन बोला और और Lean सेक्स mean? मशीन नहीं बोला. नहीं. डिसअपॉइंटेड. अच्छा मशीन बोला. और मतलब मुझे क्या पता है क्या मशीन है. मुझे मशीन चलानी नहीं आती. हाँ? ये मुझे मशीन चलानी नहीं आती. अच्छा. कभी मशीन क्या है तो नीचे गो डाउन दैट रूट. नहीं मशीन के बारे में नहीं बात हाँ, करेंगे यहाँ बिल्कुल, पे. बिल्कुल. मशीन. Picture सारी- के आप बारे में. प्लीज बात हाँ, कीजिए. मैं वही तो. हाँ, बोलिए कुछ. क्या बोल रहे थे आप? मैं कुछ नहीं बोल रहा था. मैं सिर्फ तो मशीन. बोलिए ना फिर. हाँ, ठीक है. लेट्स डू दिस वन थिंग. क्योंकि आप लोग हैं, इन्होंने आपको सुपर लाइक किया है, इन्होंने आपको राइट स्वाइप भी किया है, तो मैं एक रैपिड फायर खेलूंगा आप दोनों के साथ. ओके, अच्छा. क्विकली लेट्स गो फॉर इट. रैपिड. रैपिड फायर. सो अरे ऐसे क्यों? मतलब कुछ क्या मतलब? रेडी? कबड्डी कबड्डी कबड्डी. अरे, अरे, Okay. अरे. हाँ. Kunal, what do you think about modern romance? Is it confusing or is it not? It's confusing. Yeah. Why? Why is it confusing? It's always been confusing. Actually, what modern romance? Romance has always been confusing because when men and women come together, it's going to be confusing. Alia, what do you think Yeah. of the same? I completely agree. Okay, next question. Okay, next one. Favorite pickup line. Alia, favorite pickup line. Is your father a... No, I will change that. ना. Say it. बहुत लफड़े हो रहे हैं. बहुत खराब है, बहुत खराब है. अच्छा, हाँ. I don't use pickup lines. Can that be my answer? Okay, Kunal, your favorite pickup line. Mine is on a scale of 1 to 10, you're a 9, and I'm the one for you. Oh, Hi. please give a big round of applause. Though I think actually, that's there's another cheesy one. I have one. Okay. But you're not saying the position. But she's You're ready. not, Okay. I forgot it. ठीक है, मैं बाद में बोलती हूँ. Okay. Question number 3. The nation wants to know. Describe your perfect soulmate. हाँ? Soulmate are souls. When the souls touch, then we become soulmates. Look, soulmates. Soulmate. Soulmates, yeah. Soulmate. Interesting. That is your description of that. Okay. What is the biggest turn off in a guy? Body odor. Girl. Acha, I'm a guy, I thought. Ditto, yeah. 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 Body There's someone that odor. talks too much. Ha. Okay. Doesn't listen. No, I'm not talking about you. Why are you looking? Okay. Next. Okay. What look in a guy would impress you the most on a first date? Huh? What look on a guy would impress you the most on a first date? Something cash, chill, easy, trying not to impress, not too hard to impress, like Yeah. something like this. Kunal. Maybe. First date. Why are you saying it like Because this? you're not rapid fire. Okay, okay. First date. क्या पसंद करेंगे आप? What First would you date. like a girl to look like? What would I like a girl to look like? My God, I've been on lots of first dates and all the girls have looked very different from each other. Okay, So describe there's one. no, You describe want them to one. be different from each other, basically. Yeah, different from each other would be nice, yes. अच्छा तो एक describe कीजिए. एक date आपका first date कैसा था? First date, you know, there's a damn good line which I love, which is that a good first date is one that ends at dinner, but a great first date is one that ends at breakfast. Amazing. I think that I've had deserves a some round of breakfast applause. once, please. and That is awesome. Have you had some breakfast once? I don't eat breakfast. Oh, okay. No, I eat lots of lunch. Oh. Now next. Ah, interesting. First ends at That's lunch. an amazing date. Next. Okay, that's where we stop. But I think we've had enough Oh. of these
pigs on each You other. got us charged up and then now you just like dhoop. Okay, considering that now we've had enough of this rapid fire, we've got a bit of your personal lives also out here. एक काम कर लेते हैं. पर्सनल ये कॉफी विद करण नहीं है. नहीं है. अच्छा ये ऐसा लग रहा है. ऐसे नहीं होता कभी. रिक्स नहीं उठाते हम रिक्स. कोई हैम्पर नहीं है तो कॉफी उतर नहीं है. हाँ, 500 चलिए, 1000 रुपए के नोट है. मेरे को 100 के चाहिए. बहुत गरीब हूँ मैं. नहीं मेरे पास 100 रुपए के नोट. Next. All right, very romantic, very in the zone, in the moment kind of song. How was it for you, this particular song? Well, you know, I have to say something. I've been getting all these messages on social media के बेचारी आलिया का दिल तोड़ दिया तुमने and all that. I've suddenly become this evil heartbreaker No, on social you're not media. evil I'm not heartbreaker. evil at all. मैं तो मतलब शराफत का पुतला हूँ. So I want to say something is that you know I think there's a lot that happens about heartbroken people. There's poems written, songs written about how difficult it is, but sometimes it's very difficult with the heartbreaker as well. And I don't think that there's enough about that. I think ये बात आपने बिल्कुल सही कही है. हाँ मतलब बहुत मुश्किल होता है somebody that you've dated for a long time to look at them and say look it's not working out. No? Heartbreaker is sometimes even more difficult than being heartbroken. I agree. Totally. You know it the best, Alia. Why does she know it best? She knows Why it do best. I know the best? मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया. अच्छा मैंने तुम्हारा दिल हाँ तोड़ा चलो इसलिए. हाँ ठीक है. Anyways, you tell us आपके लिए गाना कैसा था? How was the song for you? Personal experience. How did you like the music in the song? No, I genuinely feel कि जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको सिचुएशनल गाना जो होता है ना उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा. I mean the music is lovely, but I really wish that y'all could see it in the flow of the film, which I'm sure आप देखोगे, and then I think आपको ज़्यादा पसंद आएगा. Well, thank you, Alia. Thank you, Kunal. Now we leave the question and answers open for the press. Please अपना नाम लीजिए, अपने न्यूज़पेपर या अपने मैगजीन या अपने चैनल का नाम लेकर सवाल पूछिए. Thank you very much. From the time you acted in Student of the Year till now, Dear Zindagi, what is the exact change in you? Because even in that time, if I remember, you acted perfectly. How And in sweet. what way you are improved as an actress? I think I don't know if I can be able to really measure my quality of acting कितना improve हुआ है, क्योंकि मेरा ये मानना है with every film I want to forget that I learnt anything and go back to feeling like I felt with the first film. क्योंकि उसी तरह से I'll be able to grasp more, learn more, absorb more. So I would believe that I've learnt a lot in terms of technique, understanding, people, experiences. उस टाइम पे मैं 18 साल की थी. Today I'm 23 years old. बहुत बड़ी हो गई हूँ मैं. But there is a mental difference maybe. Like I have grown up or understood things a little better. But yeah, I think how I've changed as an actor, only the audience and the people, and you can tell me. I can't really say what has changed in me. And next question for Kunal. Kunal, you are also equally a good actor, and you acted in Malayalam film also. Veeram. Yes, yeah. And you are doing a Dear Zindagi. Right. How do you switch off and on when you switch from a Malayalam film to a Hindi film? Well, you know that Malayalam film is also a Hindi and English film, so it was obviously very challenging because we had to shoot every scene in 3 languages. But I think you know that's the lovely part about being an actor is that you get to play lots of different people and lots of different characters. And I remember a line that when I started off, Raghubir Yadav had told me. He said, you know, actors are blessed because everybody gets a chance to live their lives, but actors get a chance to live multiple lives. So I think that's the exciting part about being an actor is to play different roles and play different people. Thank you. Thank you. Yeah, Alia, what does love mean to you? You're not married, Kunal is married. And Kunal, you also after Alia. So Alia, what does love mean to you? I think, honestly for me, love ka meaning changes every day. Actually, genuinely. And I don't believe love is only between a boy and a girl or between two lovers. I feel there's a very strong love between two friends, very strong love between a special friendship, strong love between me and my cat. I have a very, very strong love for my cup of coffee in the morning. So love, I think, is universal. But every day, I think my definition of love changes. So today, I think my definition of love is Dear Zindagi. We have a question here. Yeah, for Kunal. For me, actually, she said it before I could say it. You agree? I agree with you How completely. No, I think love is something that keeps changing, and I don't think that you can have one small little definition of love. I think it's too vast to have like a little small thing and say that this is what love is. I think it's different things on different days, and for different people and different things. Alia, Yes. congratulations for the song. Thank you.
Alia, yeah. क्या Is हुआ? the dating to be done responsibly? हाँ? Is what? Dating should be done responsibly, and what are the things you would like to suggest for dating? वो पिक्चर देख के आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीजें पिक्चर के अंदर. I mean, responsible तो चलते हुए भी बनना चाहिए वैसे. तो dating is of course, but I don't understand what you mean by responsible. But मैं कोई होती नहीं हूँ I think tips देने वाले कि यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे. I just feel that like-minded people और जहाँ आप एक conversation हो सकता है when you can really connect with the person as opposed to just frivolously dating. And I'm not a person to judge that either. So something like that, if people want to do, and I genuinely believe that Tinder is a great opportunity for people across the world to meet like-minded people and to hang out with them. And it's not only for people who want to date. It's also for people who suppose who don't have time to really go out and socialize. Sometimes you're in a new city or in your own city, you want to just hang out, have a nice quiet dinner, meet people, have conversations. And you can interact with people, you can chat with them, you can find out what they're all about. So I think it's a great way to interact with people and broaden your your mind. जब मर्जी हुई तब दे दिया. Kunal, आप बताएं, has there been any change in the dating process? Like you have been seen both the generations, like this generation. But what do you mean by both the process? generation Process मतलब क्या होता है? मुझे तो बहुत किसी से बुड्ढा मिलते- बना दिया है इन्होंने. No, I want to know process. मतलब थोड़ा सा थोड़ी ना होके कि हम लोग कचुम्बर नहीं बना रहे कि पहले आलू काकड़ी काटेंगे, फिर मिर्ची डालेंगे, फिर वो करेंगे. Process नहीं होता है. You meet somebody, right? If you feel that person is interesting, you go on a couple of dates, and then if it's really nice, then that person becomes your boyfriend / or girlfriend. Simple है ना? Process थोड़ी होता है. And Alia, you have been proved कि you have been lucky for Mr. Karan Johar with Adil I've been lucky? Yeah. Oh my God, please don't put Aidil Mushkil's success on me being lucky. It did well because the film was lovely, that's why. And this movie also. ठीक है, don't worry, it's okay. हम लोग हैं यहाँ पे. Please पूछिए. This film also, what are your expectations from this film? अच्छे expectations होंगे ना. I won't want bad for my own film. But I really feel like people, not only the youth, even older people will connect to it because it's a perspective from even a parent's angle, a daughter's angle, friend's angle. तो मुझे ये लगता है कि सब लोग connect कर पाएंगे. If Alia is on Tinder, what kind of a profile are you looking for? My profile or another person? The other person. So. See, genuinely, as I said, I love to make conversation. So if I find somebody's profile interesting, a humorous kind of person, he has some character, usko creative cheez mein zyada interest hai, then I would probably be interested in somebody like that. And what about the kind of pictures? Obviously, mirror selfies are out of the question because you don't like mirror selfies. एक लेम टाइप का फोटो एक होता है, एक अच्छा टाइप का फोटो होता है. एंड आई थिंक यू कैन आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है. कोई ऐसा पोस्ट कर रहा है तो देन मे बी आई जस्ट स्वाइप लेफ्ट. फिर समबडी इज जेन्युइनली स्टैंडिंग पोजिंग विद अ फ्रेंड, कोई माउंटेन का फोटो हो तो शायद मतलब ओ ये माउंटेन हाइकर है, मतलब माउंटेन्स पे शायद जाने का मौका मिलेगा. सो देन यू विल प्रोबब्ली If you want to date, I was going to say Kaira. If you want to date Alia, basically you need mountains at the back. I love mountains also. Kunal, just now Alia said that, I mean, usually you date like-minded people, but usually I think unlike-minded people club together. What do you have to say? Well, I don't think there's, like she was saying, there's no rule of dating and there's no rule of romance. I've dated a lot of people and I've dated all different sorts of people. I mean, I've dated people that thought exactly like I did, had common interests. I've dated people that, had thought completely differently and had interests that were really different from mine. So I don't think there's a process to it and I don't think there's a rule to it. I think you just connect or you don't connect. And I don't think it's dependent on whether you're like-minded or you have the same hobbies or whatever it is. I also think feel it's just- like-minded does not necessarily mean same thoughts. Right. I feel like-minded also is nice when you challenge each other's thoughts. That's also interesting. And somebody just asked you, he said that you're married, right? Right. So has your definition of love changed after marriage? Would you like to? Well, I don't know if my definition has changed, but I think the love has grown. I think I'm more in love with my wife now than I was when I was dating her. I was in love with her then as well, but I think that's grown a lot more now. So I don't know if the definition has changed, but the quantity has changed. Hi Alia. Yeah.
हेलो, हाय हाय हाय। आलिया, आपने हाल ही में शायद कॉफ़ी विद करण में कहा था कि आपने 3-4 लोगों को अब तक डेट किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फर्स्ट टाइम किसी को डेट करने का वो एक्सपीरियंस, और फर्स्ट टाइम जब हार्ट ब्रेक हुआ था उससे कैसे आपने डील किया, थोड़ा कुछ बता सकती हैं? मैं बहुत छोटी थी। I mean, I'm not छोटी, मतलब I was like 16, 17. sound like a toddler. I was 16, 17. Thanks. I was 16, 17. या कोई फंडा नहीं होता है. You just engross your. उस टाइम पे I was like with my friends और कुछ ज़्यादा distract करने की कोशिश कर रही थी. But I think today maybe I'll just maybe go for a holiday, just focus on my work and I don't feel bad. अगर कुछ, I mean I will feel bad, पर अगर कुछ खत्म हुआ है, it's obviously for a reason. और अगर खत्म नहीं होना था, then it will come back together. I always believe that if that person is meant for you, he'll come back to you or she'll come back to you. Well, I think thank you so much, Alia. Thank you so much, Kunal. Well, thank you. Thanks so much, guys. We're Thank you. also live on Facebook, and the deal is that a lot of your fans have been requesting and placing requests and गाने की बात कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछे हैं। सबसे ज़्यादा हिट मिला है एक सवाल को, जहाँ पर आपके बहुत सारे फैंस ये चाहते हैं कि आप एक गाना गाएं थोड़ा सा। कौन सा गाना? कोई भी गाइए। My voice is really gone. Gone. बट चलेगा, if you can manage. ऐसे गाऊं? थोड़ा चलेगा। Okay. तो एक सॉरी एक ए जिंदगी गले लगा ले इलियाराजा का जो गाना है, हमने एंड वी आर वेरी वेरी ऑनर टू हैव इट अ पार्ट ऑफ आवर एल्बम, क्योंकि हमारी फिल्म की ईथोस से बहुत मिलता जुलता है। और मैं पहले से माफ़ी मांग रही हूँ अगर कुछ गलत हो गया तो, क्योंकि मैंने कोशिश किया है अलॉन्ग विद अमित त्रिवेदी हु इज़ अ जीनियस हु मेड इट अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन। बट मैं ये सिर्फ इसलिए गाऊंगी क्योंकि मेरे आई थिंक इट रेजोनेट्स विद माई कैरेक्टर्स फीलिंग्स एंड द फिल्म्स जर्नी, तो ये पूरा दिल से है। ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी। Thank you, thank you, thank you. That was amazing, Alia. And I just changed my name, Zindagi. Hi. नहीं, sorry, आपका नाम ग्लेन है, ग्लेन रहेगा। Okay, ladies and gentlemen, thank you so much, guys. Well, thank we'll you. just Thanks like so to invite the cast, the remaining part of the team. Yes. All right, can I please have please, guys, please give a round of applause A for big the round rest of of the applause cast for our who actors. really make the film. Akanksha Gare, can I please have her on stage?
थैंक यू। ओवरऑल ज़्यादा चाहिए कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर, और इसमें शाहरुख खान भी है, ढेर सारे टीजर आए हैं, बहुत सारे लोगों ने इस टीजर को देख के और बहुत सारे जो आप लोगों ने फॉलो किया है लोगों को बहुत सारा पसंद है, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस? आई थिंक ओवरऑल मैं शायद एक शब्द में नहीं सम अप कर सकती हूँ क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा, क्योंकि बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली पहली बार काम कर रही हूँ, शाहरुख खान के साथ काम कर रही हूँ, गौरी शिंदे के साथ भी पहली बार काम कर रही हूँ मैं, और पर मुझे ऐसे फीलिंग हुआ कि ये बहुत ही अलग फिल्म है, तो इस तरह से शुरू करना वॉज वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि ये बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है। आई नो लोग बहुत बोलते हैं कि अलग है, बट ये जेन्युइनली अलग है, क्योंकि इस टाइप की कहानी आई डोंट थिंक पहले कभी हमने देखा है या एक्सपीरियंस किया है। और ये आई वुड नॉट से कम एक्सपीरियंस एज अ फिल्म, आई वुड से एक्सपीरियंस इट एज अ जर्नी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बारे में कहानी है, तो कुछ ना कुछ आई थिंक हमेशा आई थिंक लोग लेके जाएंगे, सीख लेके जाएंगे। आलिया, इसके अलावा आपको ये ऑफर कैसे हुई फिल्म, और इसको लेकर मतलब आपको डर नहीं लगा कि इस तरह की कोई स्क्रिप्ट मतलब काफ़ी अलग है जैसे आपने कहा, तो क्या सोचा था आपने, क्या थॉट प्रोसेस था? नहीं, मुझे बहुत, मैं हमेशा अपनी गट और इंस्टिंक्ट के साथ जाती हूँ, तो जब मैंने ये नरेशन सुनी आई लव्ड इट इमीडिएटली, मैं इंस्टेंटली इसके साथ कनेक्ट कर पाई थी, तो आई डिडंट हैव एनी डाउट्स अबाउट इट। और उस टाइम पे शाहरुख ऑल्सो वॉज नॉट ऑन बोर्ड, तब इट वॉज जस्ट मी एंड गौरी, और मुझे पता था कि वो उनके पास जाने वाले थे, और ऑब्वियसली जब वो बोर्ड और वो फिल्म पे आए थे आई वॉज मोर देन हैप्पी, क्योंकि इट इज़ सच अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। Alia, how different it was to work with Shah Rukh Khan as an actor off camera, on camera Shah Rukh Khan में कितना फर्क आता है मतलब as an actor? I mean obviously on camera वो कैरेक्टर है, तो it's obviously different. Off camera he's himself, और actually even I got to know him as a person through and through. ज़्यादा टाइम हमने नहीं स्पेंड किया था उसके पहले, we were only probably meeting socially, पर I got to spend time with him with this film, और अच्छा लगा क्योंकि actually रियलाइज हुआ कि हमारी थॉट प्रोसेस काफ़ी मिलती जुलती है। आलिया, there is a teaser in which आप कहते हो कि if you are not a person with flaw, then it's something wrong with you. आप में क्या फ्लॉज है, क्या लगता है? बहुत सारे फ्लॉज हैं, फ्लॉज तो होना चाहिए, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म, दैट्स समथिंग दैट आई शॉट अपार्ट। आई थिंक फ्लॉसिम इज समथिंग दैट वीव कम अप विद, देव कम अप विद, कि फ्लॉज होना भी ऑसम होता है। तो अगर आप में फ्लॉज है, जैसे कि मुझ में मैं बहुत जल्दी बात करती हूँ, वैसे बात करती हूँ, तो वो एक फ्लॉ है, बट आई सेलिब्रेट इट एज अपोज टू हाइड अवे फ्रॉम इट। मेरे चेहरे पे अगर दाग है, जो यहाँ पे मैंने एक दिन दरवाजे के अंदर ही आई वॉक्ड, तो मुझे यहाँ पे एक कट हुआ, तो आई थॉट लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू हाइड इट, वो है तो सेलिब्रेटेड। तो जैसे कि छोटे छोटे फ्लॉज हो सकते हैं आप में, बट इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि फ्लॉज होना भी ज़रूरी है। Not only breakups, I'm dealing with a lot of other things. Personally, I think हर एक का दूसरा क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न होता है ब्रेकअप से डील करना। आई थिंक इट रियली डिपेंड्स हाउ हार्ट ब्रोकन यू आर। इट डिपेंड्स, अगर आप बहुत ही अफेक्टेड हो, मैं हॉलीडे के लिए चली जा सकती हूँ, अगर ठीक है हो गया बाय मिस्टेक नहीं, पर हो गया, आई मीन नो, इट्स ऑल गुड दैट हैपन, नो बैड थॉट्स, तो सिंपली हो जाता है, यू मूव ऑन, यू फोकस ऑन वर्क, ऑल दोज थिंग्स। आपकी लाइफ में डियर वन कौन है आपकी जिंदगी में? डियर वन, मैंने कल ही ट्वीट किया था विद द डियर वन शाहरुख खान। अलता पंजाब में आपने जो कैरेक्टर किया था, वो जिंदगी ने उसको बहुत तकलीफ दी थी, जहाँ पे आप पूरे लव जिंदगी एज एन एक्ट्रेस कितना कॉन्ट्रास्ट था जो कैरेक्टर आपको? बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था, क्योंकि वहाँ मैं एक बिहारी माइग्रेंट प्ले कर रही थी, यहाँ मैं एक अर्बन मुंबई सिटी गर्ल प्ले कर रही हूँ हु इज़ अ सिनेमाटोग्राफर। बट हैविंग सेड दैट, हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स अलग होंगे, उसकी ज़िंदगी में शायद हाँ हमारे नज़रिए से ज़्यादा है, पर कभी आपकी ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम्स हो तो आपके लिए वो प्रॉब्लम्स ही है ना, आप नहीं कहोगे हाँ के द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, ऐसे हमेशा होता है। तो इट वॉज नॉट लाइक दिस वॉज नॉट ईजी, इट वॉज ईजी टू प्ले, इट वॉज एज नॉट एज डिफिकल्ट बट इट वॉज डिफिकल्ट। जितने टेक 1, टेक 2, टेक 4 ऐसे देख के लग रहा है यूथ कनेक्टेड मूवी है, तो जितने सारे प्रॉब्लम्स आपने इसमें दिखाए, ब्रेकअप से लेकर बहुत सारे चीज़ें हैं, तो वो आपको लगता है कि ये मूवी देखने के बाद दैट इज़ रियली गोना इंस्पायर और द यूथ, और जो प्रॉब्लम से वो कनेक्टेड है, वो चीज़ें आपने पर्दे पे लाई, तो आपको लगता है कि उसमें सोल्यूशन लोगों को मिलेगा? हाँ, आई होप सो, क्योंकि एक्चुअली जब मैंने पढ़ा स्क्रिप्ट या सुना, आई ऑल्सो फेल्ट कि हाँ मैंने इस नज़रिए से कभी देखा नहीं है, तो
लॉट ऑफ दीज थॉट्स दैट आई फील लाइक पीपल विल कनेक्ट विद. बट हैविंग सेड दैट आई फील सिर्फ यूथ ही नहीं कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि इसमें फैमिली एंगल भी है, पेरेंट्स भी इससे कनेक्ट कर पाएंगे, फ्रेंड्स, यू नो, ओल्डर्स, एवरीबडी विल कनेक्ट टू इट, एंड आई रियली फील दैट. आलिया, इसके अलावा अभी जो रिसेंट फिल्में आई उनको करेंसी बैन की वजह से काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी बिजनेस के मामले में, तो आपको लगता है डियर जिंदगी को ऐसे कुछ होगा, और क्या कहेंगे, आपका क्या? आई होप नॉट. आई फील धीरे धीरे इट्स बिकमिंग, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, बट आई फील लाइक एक बड़े चेंज का होना, देयर विल बी सम रेपरकशंस टू इट. इट्स अ बिग चेंज, अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड, अ गुड स्टेप फॉरवर्ड, एंड आई नो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट राइट नाउ, बट होपफुली विथ टाइम the problem will, the shortage of, you know, whatever notes, 500 rupees, 1000 rupees, even 100 rupees notes, जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो छोटे छोटे होते रह जाएंगे. Just to give it some time. आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको इस कैश क्रंच की वजह से आपको भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको जो प्रॉब्लम सामना करना पड़ा इसकी वजह से? मैं तो प्लास्टिक मनी यूज़ करती हूँ, मेरा तो कार्ड है. सो आई हैव नॉट रियली फेस मच प्रॉब्लम ऑनेस्टली. यू हैव अ लिमिट और आप जाके एक्सचेंज कर सकते हो, तो गोइंग बाय द गाइडलाइंस आई एम सेफ एट नाउ, बट आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट नॉट एम्पथाइज विद द पीपल हु आर फेसिंग दैट. आई नो कि प्रॉब्लम है, बट आई अगेन आई एम सेइंग कि it's a step to a bigger change, so let's be little patient. टीजर में आपने बताया कि and it's a very big aura, and though you are from a film family fraternity of you are first of this, but how you felt जैसे Karan Johar fainted the very first day he was there in Shahrukh Khan, what was your reaction? I didn't faint. But you know, I was nervous. Whatever said and done, working with Shahrukh Khan is a big deal for me, especially since I've only been here for 4 years. So I was nervous, but you know him, he's a very warm person. So he'll go out of his way आपको अच्छा feel कराना, आपको थोड़ा सा settle feel कराना. He'll go out of his way to make you feel that way. So he did exactly that. और eventually after आधा दिन, हमने एक पूरा दिन शूट किया था सीन. That was the first scene we shot together, जो बीच वाला सीन है, कबड्डी वाला. आधा दिन के लंच ब्रेक तक I was fine. तब मैं खुल गई थी, चिल हो गई थी, and then we were shooting happily. आलिया, आप बहुत ही अच्छी सिंगर है, तो डियर जिंदगी का ऐसा कोई गाना जो आपके दिल के करीब हो और गुनगुनाना चाहे अगर 2 लाइनें? सारे गाने वैसे करीब है, क्योंकि मेरी गाने. कोई एक गाना अगर आप गुनगुनाना चाहें? फेवरेट तो लव यू जिंदगी टाइटल ट्रैक है, दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग. मैंने गाया भी है, क्लब मिक्स वर्जन मैंने गाया है, बट द ओरिजिनल वर्जन इज माय फेवरेट. उसकी जो बोल है बहुत अच्छे है. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय. आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय. जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय. लव यू जिंदगी. ओके, थैंक यू सो मच. आपने टीजर में बताया कि जो लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं आपको उससे तो ऐसे में जो लोग रियल में प्यार में अंधे होते हैं, ऐसे लोगों को कुछ, वो तो लिटरल है कि प्यार में अंधे हो गए हो कि तुम चल नहीं सकते हो मेरे सामने, मैं दिख नहीं रही हूँ. दैट वाज द इरिटेशन. लोग प्यार में अंधे हो या पता नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग, इट्स फाइन. प्यार में सब कुछ होता है. हाँ, तो अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो और कपल्स है तुम्हारे सामने कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इरिटेट होगा ना कि मेरा भी ब्रेकअप हुआ है, तुम लोग यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हो, अंधे लोगों की तरह ऐसे चल रहे हो, तो इरिटेट होगा ही. वो तो बहुत, आप सबकी ज़िंदगी में ऐसे फीलिंग्स होते हैं. ये हंस रहे हैं, आई एम श्योर इनको होगा हुआ. रियल जिंदगी में हाउ ऑफन यू गेट इरिटेटेड? आई एम वेरी इरिटेबल पर्सन. तो अगर कोई मतलब ऐसे कुछ मतलब क्या है तुमको, मतलब मत करो. बट आई एम ऑल्सो वेरी काम पर्सन, तो मैं मतलब वाटर के साथ ऐसे चली जाती हूँ. I loved working with her and I hope to work with her again. I love उनका जो thinking है, वो कैसे बहुत ही precise है, जो चाहिए उनको वो चाहिए. And she's very clear about it. ज़्यादा कुछ फसाड या फेकनेस नहीं है, वो बहुत ही रियल इंसान है. कभी आपको ऐसी फीलिंग होगा कि गौरी आपके साथ फेक बिहेव कर रही है. शी इज़ वेरी रियल, क्लियर and a very, I think, a very unique voice of the film industry. आलिया, डियर जिंदगी में शाहरुख एक आपके मेंटर काइंड ऑफ प्ले कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में आपके 3 AM फ्रेंड हर किसी का होता है जिसको आप कभी भी कॉल कर सकते हो. ये मेरे को समझ में 3 AM ही क्यों होता है, 1 AM क्यों नहीं है? तो पर मैं व्हाट इफ आई एम अर्ली स्लीपर?
हाँ 11 PM और 4 AM in the morning. मेरे दोस्त है जिसे आप कभी भी कॉल कर सकते हो या बिना सोचे समझे आप कभी भी. I think my childhood friend Akansha Kanchi. Anyone from the industry. Ayan is somebody who I can call at any time. Ayan Mukherjee. Karan also somebody who I can call. I feel क्योंकि also Karan रात को सोते नहीं है. And if I have to edit this thing, I can call him out. आलिया, इसके अलावा आप कल महबूब स्टूडियो में थे, वहाँ पर आप पद्मावती की स्टारकास्ट से भी मिले, तो कैसा मतलब इंटरेक्शन? स्टारकास्ट से नहीं, सिर्फ दीपिका से मिली हम. मतलब दीपिका थी वहाँ. हाँ, she was looking very gorgeous. बस मैं यही कहूँगी. But it was lovely. It was lovely meeting her and Sanjay sir. तो टीजर में भी देखा कि सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे आप लोग कुछ अच्छे दोस्त ढूंढते, फिर बातें बोलते, अरे मैच करेगा रियल मतलब क्या दोस्त? अच्छा हाँ, मैच. टिंडर पार्टी वो तो है रात को आज. हाँ, रियल लाइफ में भी आप इस तरह से बिलीव करते हो? क्या टिंडर को? मैं तो हूँ नहीं टिंडर पे, तो बिलीव मतलब ऐसे कोई रिलीजियस फॉलोइंग नहीं है मुझे बिलीव करना है टिंडर में. मतलब लोगों को अगर करना है तो करेंगे. आई एम नॉट ऑन टिंडर. लास्ट 2 क्वेश्चन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था. आई थिंक ही इज़ अ फैब गाय टू वर्क विथ. रियली गुड एक्सपीरियंस. ही इज़ अ वेरी लवली एक्टर. बहुत लोग उनके बहुत बड़े फ़ैन है. आई हर्ड अ लॉट के कुणाल इज सो सेक्सी एंड ऑल ऑफ दैट एंड ही इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फिल्म. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद हिम. आलिया, डियर जिंदगी की जब बात करेंगे तो लाइक 2 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन, जब भी डियर जिंदगी की बात हो तो एक वाकया है, कोई एक इंसिडेंट जो पर्टिकुलरली आपको हमेशा याद रहेगा, समथिंग यू चेरिश फॉर योर लाइफ. आई थिंक वंस पीपल सी द फिल्म आई फील लाइक लोग डायलॉग्स को लेकर शायद 2 years 3 years डाउन द लाइन बात कर पाए. जैसे कि लोग मेरे बुरे पीजेस को लेकर बहुत ही हैरान है. तो आई थिंक मे बी दैट विल बी टेकन फॉरवर्ड आफ्टर वाचिंग. Something for you you cherish. आई थिंक इट्स माय फर्स्ट फिल्म मे बी विथ of such a genre, such a kind. I think that will be the most special thing for me. Done. Thank you. Thank you so much. It was fine. It was good. Yeah. He's good as always. 2.5. कैसी लगी आपको? वेरी ब्यूटीफुल मूवी, वेरी ब्यूटीफुल. आलिया एंड शाहरुख इज जस्ट बेस्ट ऑसम. स्टोरी आपने खास साइकियाट्रिस्ट जो था, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, इसके लिए खास लगी मुझे. और शाहरुख खान के लिए गया था. कितने स्टार देंगे आप? 4 स्टार. कैसी लगी आपको? हाँ, it's good. It's good. It was good. Very good. It was good. Very nice and a good concept. कितने स्टार देंगे आप? 4. Thank you so much. It was good, yeah, fabulous. शाहरुख खान और Awesome. शाहरुख खान और yeah. Sorry. Story was good. It was fabulous. Well directed. 4 star out of 5. Yeah, songs were good and well plotted story. It was really good. It was really good. I really loved Alia and Shahrukh Khan movie. They were damn good. Sorry? 4. A nice movie, really. आपको अच्छी लगी फिल्म? It's good. कैसी लगी फिल्म? Best. कैसी लगी फिल्म? देख के आओ ना, अभी पता चल जाएगा. अच्छा, अच्छी लगी मतलब. आप देख के आओ ना. की मूवी कैसी लगी? शाहरुख की एक्टिंग कैसी लगी? देखने के बाद पता चलेगा. मैं ऐसे नहीं बोल सकता किसी को भी. बहुत अच्छी है. Nice movie. फिल्म कैसी लगी? अच्छी थी. बहुत अच्छी थी. आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. कितने स्टार देंगे? 5 स्टार. कैसी लगी सर फिल्म आपको? हाँ, काफ़ी अच्छी थी. क्या नाइस खास मूवी. क्या अच्छा लगा आपको? आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा. और शाहरुख की एक्टिंग? शाहरुख खान का भी अच्छा था. नाइस मूवी. कितने स्टार देंगे 5 में से? 4.5. गुड मूवी. मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी. बहुत कमाल की मूवी है और शाहरुख खान आलिया भट्ट ने बहुत अच्छा काम किया है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है. थैंक यू. कहानी कितनी पसंद आई? कहानी बहुत यूनिक है और बहुत अच्छी है. विमेन को और ज़्यादा जो इन्फीरियर मानते हैं नॉर्मल लोगों की मेंटालिटी, तो उस सेंस में इन्हांस किया है स्टोरी को. एंड लिटरली सुपर्ब जॉब बाय आलिया भट्ट एंड शाहरुख. ऑसम. आपने कितना रिलेट किया स्टोरी? या बहुत ही अच्छा है. आई थिंक हर लड़की इस स्टोरी से रिलेट कर सकती है, तो इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन आई वुड से. कितने स्टार देंगे आउट ऑफ 5? आई वुड गिव 4.5. फिल्म कैसी लगी आपको? Nice. शाहरुख की एक्टिंग कितनी अच्छी लगी? I love Shahrukh. Yeah, she loves. She's amazing. Yeah. तो आपने स्टोरी से कितना रिलेट? बहुत ज़्यादा, बहुत मॉडर्न है. बहुत आज के टाइम की स्टोरी है. आपने कितना रिलेट? It's everyone's story. It's like a personal thing. हाउ मेनी स्टार
For Shahrukh, come on, baby. For Shahrukh, 5.5. 5 for Alia. कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी फिल्म, बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया। फिल्म में खासियत क्या थी? स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इट्स वेरी फ्रेश, इट्स अ सेकंड फिल्म फ्रॉम गौरी चंदन, इट्स अमेजिंग, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। शाहरुख की एक्टिंग इट्स माइंड ब्लोइंग एंड आलिया भट्ट इज जस्ट अमेजिंग इन द मूवी, इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। 4.5 या थैंक यू। मतलब छोटा सा रोल किया है उसमें। Yeah. कैसी लगी आपको एक्टिंग शाहरुख की? I always like him. He is always amazing. आलिया भट्ट का कैसा लगा? Even she was like quite nice. I'm not a huge fan of her, but yeah, she was very good. इसलिए तो वो डॉक्टर का किरदार निभाते हैं, तो क्या अलग लगा, कहानी कुछ अलग लगी आपको फिल्म में? कितने स्टार देंगे? स्टार दें? I think 3.5. Thank you so much. कैसी थी शाहरुख खान? बहुत अच्छी थी, शाहरुख खान गुड, Okay, and Alia Bhatt? आलिया भट्ट फैंटास्टिक, What about the story? स्टोरी वाज कितने गुड, स्टार देंगे out of 5? 5 ऑब्वियसली 5। कितने? USP क्या है फिल्म का? It's a new concept. And out of 5? Yeah, 4. Music side? Really nice. Thank you. Yeah, he was fabulous. और आलिया भट्ट का किरदार कैसा? बहुत अच्छा था, शाहरुख बेटर, स्टार देना चाहिए? 5 full 5। It was good, it was really good, it was really good. It was Alia Bhatt, the acting is superb, really superb. And Really what like about the it. story? Story is like about the life, how we need to. How many stars will you give out of 5? Out of 5 I can give 4, really 4, yeah, it's good. कैसे लगी आपको शाहरुख की एक्टिंग? It's good movie. It's good movie. कैसे लगी आपको डियर जिंदगी? मुझे बहुत अच्छी लगी, और गौरी शिंदे का डायरेक्शन तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, शाहरुख की एक्टिंग कैसी थी? हाँ, अच्छी थी, और आलिया की एक्टिंग तो मुझे वैसे ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। शाहरुख की अब तक की अच्छी एक्टिंग मानी जाएगी आपको? मैं शाहरुख के बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाँ बहुत अच्छी एक्टिंग। कितने स्टार देंगे out of 5? Out of 5, 4. It is direction and screenplay is very good. और जैकी सबसे अच्छी थी। जैकी इज द सेकंड कास्ट। Okay. And Alia Bhatt की एक्टिंग कैसी लगी? आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी थी, पर उसके साथ जो दूसरी थी उसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी थी। Okay. And शाहरुख खान की एक्टिंग? शाहरुख खान है, शाहरुख खान यार, उसको एक्टिंग की जरूरत नहीं है, वो तो दादा है। कितने स्टार देंगे out of 5? इट्स 4 स्टार। The film was really good. What is the USP of the film? The USP is like there's a lot of dialogue in the film, जो usually movies में नहीं होता. Like a large part of the film has a lot of conversation between the two of them, जो usually इतना दिखता नहीं है movies में. If you understand, like one-on-one conversation between two characters. What about direction of Gauri Sindh? It is really good. It's good. एक्टिंग कैसी थी? Shahrukh was very good. Alia Bhatt की एक्टिंग कैसी? She was also fantastic. Out of 5? 3.5. फिल्म तो बहुत अच्छी थी, मैसेज बहुत अच्छा है मूवी का, सबको देखनी चाहिए। इसके पास भी कोई प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, डिफरेंट मूवी थी। 5 out of 5। शाहरुख की एक्टिंग और आलिया भट्ट? शाहरुख अमेजिंग, दोनों की बहुत अच्छी एक्टिंग। कितने स्टार देंगे out of 5 out of 5। बहुत अच्छी लगी मूवी, आई लव शाहरुख खान, सो द मूवी वाज फैंटास्टिक। Okay. स्टोरी आपको कितनी रिलेट की आपको? डियर जिंदगी इज अ मूवी विच एवरीवन शुड रिलेट टू इट, बिकॉज वो जिंदगी में किसी ना किसी को तो भी प्रॉब्लम्स होती है। सो उसी तरीके से वो मूवी बनाई है जो जनरलाइज्ड है, और उसी से कुछ ना कुछ तुम्हें मिलता है जिससे तुम यू अंडरस्टैंड कि अरे हाँ ये मेरे जिंदगी में भी हुआ है, तो आई शुड अंडरस्टैंड एंड आई शुडंट रिएक्ट टू इट इन सच अ वे, एंड आई शुडंट मेक माई लाइफ ruined by the past. ये था सब। कितने स्टार देंगे out of 5? 5. I love Shahrukh, so 5. Good film. It was beautiful. The concept of that the girl comes out from the stress and he goes to a psychological doctor. So it was a good film. आलिया भट्ट की एक्टिंग कैसी थी? Alia Bhatt की acting good. और शाहरुख खान? Shahrukh Khan, after a long time, he was doing a good film, I guess. Okay. Like after many years, he did a good film for me. How many stars देंगे? 4. मेरे को बहुत अच्छी लगी फिल्म बहुत अच्छी थी, और बहुत अच्छी तरह लिखी गई है फिल्म। गौरी शिंदे का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, एंड आलिया भट्ट, शाहरुख खान, दे हैव डन इंक्रेडिबल जॉब। शाहरुख खान ने बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट किया इस फिल्म में, बहुत छोटा रोल था बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया उन्होंने। फिल्म से आप कितनी रिलेट? रिलेट तो होना ऑब्वियसली होता है, जैसे रियल लाइफ में काम का स्ट्रेस एंड हाउ योर पर्सनल लाइफ इज, हाउ यू डील विद थिंग्स, देयर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड इट्स अ वे हाउ यू लूजिंग थिंग्स अप। एंड आप मूवी में देख सकते हैं बहुत लोग होंगे जो अपने आप को रिलेट कर पाएंगे इस फिल्म से, एंड स्पेशली पीपल ऑफ आवर एज जो स्ट्रगलिंग इन द न्यू फील्ड ऑफ वर्क एंड जस्ट ट्राइंग टू ग्रो एंड स्टफ लाइक दैट। आलिया भट्ट का किरदार कैसा लगा आपको? आलिया भट्ट का किरदार बहुत अच्छा था। शी पोर्ट्रेड द कैरेक्टर ऑफ यू नो लाइक बीइंग हरसेल्फ, एंड थोड़ा
डिस्टर्ब थी, स्ट्रेस थी, उसको पता नहीं था कि कैसे वो करते हैं, वो गए बिल्कुल उस पर कि कैसे डेवलप करना चाहिए, बाहर आना चाहिए. तो So how many stars will you give? 5 wonderful film. Will you recommend your friends this film? Definitely. ओके बहुत ही अच्छी थी मूवी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी मूवी. शाहरुख खान ने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया. आलिया भट्ट ने डेफिनेटली कमेंडेबल परफॉर्मेंस. कितना आपने रिलेट किया फिल्म से? Actually, as we are all from the current generation, we can relate pretty much because it's always a story about the current generation. वो same प्यार व्यार love story, it's not like that. So बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगा कि ये तुम्हारी जिंदगी में भी हो चुका. बहुत अच्छे अच्छे से इंसिडेंट्स दिखाए which you can very well relate to. अभी आपको शाहरुख की एक्टिंग और शाहरुख खान इज द बेस्ट. मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो शाहरुख खान तो बहुत अच्छे है और प्रोफेशनल भी बहुत है. बट आलिया भट्ट द वे शी हैज एक्टेड और उसने अपना प्रोफेशनलिज्म जिस अदा से दिखाई है, उसे पता चलता है कि इस रोल के लिए आलिया भट्ट की जगह पे कोई और सूट भी नहीं करता. शाहरुख खान के लिए हाँ डेफिनेटली, आलिया भट्ट के लिए भी हाँ, इस बार तो हाँ बोलना ही है. आई वुड डेफिनेटली गिव अ 5 स्टार. जोर से हेलो हो जाए. सबसे छोटा रह गया, कौन है गया? ओए होए होए, कम दिस साइड. ये मैं बोल दूं पहले, हैप्पी चिल्ड्रंस डे. हाँ मैं भी चाइल्ड ही हूँ. मैं इन सब से पूछ रही थी कि मेरा एज क्या लगता है आपको. मैंने सबका गेस किया. इसका 7 साल का, ये 10 साल की है, ये 9 साल की है, ये 12 साल की. मैंने गेस किया. एक्चुअली ये छोटी वाली ने कहा कि मैं 32 इयर्स की हूँ. तो मैंने पूछा मैं कितने साल की लगती हूँ? 32 उसने बोला. क्या मैं 32 इयर्स की लगती हूँ? नहीं, मैं भी बच्ची हूँ, इसलिए मैं आज चिल्ड्रंस डे आपके साथ स्पेंड करने आई हूँ. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. एंड पहले तो मैं आपसे सब कहना चाहती हूँ कि आप बहुत सब सुंदर लग रहे हो, पर मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फ्लैश बहुत है. सब ऐसे एक करके हाय बोलोगे मुझे? वेरी नाइस. बट आई एम सो हैप्पी टू बी हियर. और आज हम लोग बहुत मजे करेंगे. पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका गाना सुनने के लिए. आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू गाइस. वीडियो भी बहुत देखा है. मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, तो दैट्स आई एम वेरी एक्साइटेड. सुना है कि कुछ राधा टाइप का परफॉर्मेंस भी है. हाँ, और आप सब सच धज के आए हो राधा आउटफिट में. हाय, मैंने भी एक्चुअली, मुझे भी लहंगा ही पहनना चाहिए था आज आपके साथ डांस करके. इतना मजा आता. और फिर हम लोग गेम्स भी खेलेंगे, तो बहुत मजा होगा आज. सो एवरीबॉडी हैज टू बी प्रिपेयर्ड. ठीक है? ओके चलो अभी क्या करें? अभी सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि मैंने बहुत बात किया ऑलरेडी. हाँ, मैंने ऑलरेडी इतनी सारी भूमिका बांधी है, तो कुछ तो जानना चाहूंगा. आपके बचपन की एक याद जो आज भी काम करते हुए आपको जरूर याद है कि यार ये मेरा बचपना मिस करा रहा है. देखो ना, मैं बचपन से ही खाने की बहुत शौकीन हूँ. तो जब भी खाना मेरे सामने होता है ना, वो चॉकलेट केक, गुलाब जामुन स्पेशली, मैं एक्चुअली बहुत देसी हूँ. मुझे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, हलवा, मूंग का हलवा, ये सब खाना अच्छा लगता है. तो जब भी मैं खाने के बारे में सोचती हूँ ना, ये बर्गर पिज्जा तो बहुत पुराना, मतलब वेरी बोरिंग. बट ये सब जब खाना मेरे सामने होता है ना, आई इमीडिएटली रिमेंबर माय चाइल्डहुड. क्या बात है. बट एक क्वेश्चन, उसके बाद हम आपकी फेवरेट चीज को शुरू करेंगे. वन क्वेश्चन, एंड आई थिंक आज के टाइम में ये बहुत जरूरी सवाल है. आजकल के बच्चे अपना टाइम पास करने के लिए मोस्टली गैजेट्स पे दिखाई देते हैं.
इधर उनके पेरेंट्स के मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे। आप लोग खेलते हो गेम्स मोबाइल फोन पे? मोबाइल फोन पे कौन कौन गेम खेलता है जल्दी बताओ, हाथ खड़े करो। हाँ? वेरी गुड। कौन से, अच्छा मेरे को बताओ कौन से गेम्स खेलते हो, क्योंकि हाँ क्या कैंडी फ्लॉस, सफारी, अच्छा। ओ गॉड, ये तो मैंने सुना भी नहीं है। मैं तो गेम्स खेलती नहीं हूँ फोन पे, मेरे को मतलब सर दर्द होता है उससे। बस अब यही एक सवाल था कि बचपन में आप कौन से गेम को सबसे ज्यादा खेलते? मैं तो बाहर जाके खेलती थी यार, छुपम छुपाई, विश अमृत। और फिर क्या हो, चोर पुलिस में मुझे बहुत मजा आता था, क्योंकि मैं पुलिस बनती थी और मैं चोर को इतना मारती थी वो सोचता भी होगी यार असली में अगर चोर बनता तो कितनी मार पड़ती, राइट? मैं तो भाग जाऊंगी ना अगर चोर होगा तो। ऑलराइट, सो वेलकम, एक बार जोरदार तालियां फॉर आलिया, क्या बात है। सो अब हम लोग आपके फेवरेट धारावी रॉक्स का परफॉर्मेंस शुरू करें। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेट्स है गो। ना? तो सारे चंटू मंटू बंटी बबली जोरदार तालियां हो जाएं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। किसके लिए? I will for sure. Any 5 questions, right? वापस आ जाओ, हाथ मिलाओ सब। वेरी नाइस या गाइस। अच्छा, मेरे को आपके बाल को हाथ लगाना है, बहुत कूल है। इसके अंदर कुछ है क्या छुपा हुआ? हाँ, बट सुपर्ब या गाइस। मतलब सब लोग बहुत, मतलब जोर से क्लैप करो, जोर से, लाइक द लाउडेस्ट दैट यू कैन। सुपर्ब। 1 सेल्फी।
देखो इसको कहते हैं फोकस्ड 1 सेल्फी, बात बंद करो, सेल्फी ले लो, चलो ले लो। कौन ले रहा है सेल्फी? मैं सेंटर में आती हूँ। हेलो Superb, thank you. That was outstanding. ये मतलब तुम लोग खुद लिखते हो लिरिक्स, like by from your heart, दिल से आता है। तुमने एक बात बोली थी कि मैं सोचता हूँ दिल से, सर से बोलता हूँ दिल से और बोलता हूँ दिल से, ना माँ की ना बाप की सुनू क्या तेरा ठीक से। ओह हार्डकोर, एवरीथिंग सुपर्ब या, वेरी गुड वेरी गुड। एंड आप लोग ने तो मेरा आई वाज वांटिंग टू कम एंड डांस ओवर हियर, तो आप लोग मेरे को एक बार दिखा दो कि कैसे करते हो, मुझे भी करना है। हाँ मैं सेंटर में आती हूँ। हाँ कहाँ बैठूं मैं बैठूं आपके? you let it go for me. There is a dialogue of yours in Dear Zindagi, like साइकिल को भी रिसाइकिल कर दे रहे हैं। हाँ So you know what? This is all recycled. Yes, no, I know. और मैंने एक चीज देखा है which I loved, कि वहाँ पे धारावीर रॉक्स लिखा है, वहाँ पे रिस्पेक्ट लिखा है, that everything, all the props have something behind it. It's superb. It's your personal, it's your own, it's outstanding. और हाथ कैसे चलते हैं यार आप लोगों का? How does happen? दिखाओ मेरे को, दिखाओ। हेलो थोड़ा स्लो। मैं न्यूबी हूँ। For Dharavi Rocks and Alia. मैं ज्वाइन कर लूं बैंड? बहुत मजा आया यार, that was superb. पर आई एम वेरी टायर्ड, ऐसे लगा कि मैं अभी मतलब कुछ 10 किलोमीटर भागी हूँ। होता है ना, यू फील टायर्ड। पसीने छूट रहे मेरे। टचअप करना पड़ेगा। हाँ आलिया रॉक्स नहीं यार, धारावीर रॉक्स। आलिया ट्राइंग टू रॉक, थैंक्स टू धारावीर। सुपर, थैंक यू गाइस। क्या वंस मोर तुम आके करो ना, बहुत डिफिकल्ट है। नहीं अभी डांस देखेंगे। आलिया जी एक बार डांस कर दो ना। एक बार क्या? हिप हॉप करो, हिप हॉप। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अबू साद। अच्छा आपके लिए ना मैं 10 बार डांस करूंगी, पर साथ में डांस करना पड़ेगा। पर अब भी आप अकेले, एक बार साथ में, एक बार अकेले। अच्छा कौन से गाने पे? राधा। ठीक है, पर पहले इनको डांस करने दो, फिर मैं इनके साथ डांस करूं। यस और फिर मैं गाऊंगी भी, फिर डांस भी करेंगे, बहुत टाइम है। चलो ओके। मैं भी नाचूंगा। थैंक यू। आप भी नाचोगे? सब नाचेंगे। मैं भी नाचूंगा। हाथ दुख रहा है यार। वाओ
तालियां बनती है यार, प्लीज जोर से। और ये छोटे छोटे से जो हैं बच्चे, इनके लिए कुछ खास है। ऑफ कोर्स बनता है, इनके लिए बहुत कुछ खास है। थैंक यू। क्या अच्छा राधा डांस किया उन्होंने, है ना? मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ डांस करके। दिस इज फॉर यू। नाम क्या है आपका? हाँ, किस दो मुझे। हाँ, मुझे भी। थैंक यू, सुपर्ब। अभी अच्छा, अभी माइक। ओके चलो, अब एक काम करते हैं, आपसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, और ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल इन बच्चों ने मुझे दिए आपसे पूछने। पहले आप इनसे पूछना चाहोगे या पहले इनके सवाल मैं आप देता हूं? क्या चाहते हो, जल्दी बताओ। लाओ, थैंक यू। आप बताओ क्या करना है। पहले ये आपसे सवाल पूछ लें या पहले आपने जो मुझे सवाल दिए इनसे पूछने के लिए वो पूछा जाए? जल्दी बताओ क्या करें। पहले इनसे सवाल पूछवा लें, मैम सवाल करेंगे और आप जवाब दोगे। डन रहा? क्वेश्चन नंबर 1। डिफिकल्ट सवाल है। देखो मेरे को, देखो सवाल दो। ये तो मेरे सवाल है जो ये बच्चों ने आपके। तो इनका सवाल कहाँ है? इन वाले बच्चों के सवाल कहाँ है? बहुत डिफिकल्ट सवाल है। देखो, चलो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं बदला ले रही हूँ। मुझे बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछते हैं ना सब लोग, खास करके मेरे दोस्त हैं यहाँ, और मैं हमेशा गलत आंसर देती हूँ। आज आप लोग आंसर कीजिए, मैं क्वेश्चन पूछूं, आप लोग आंसर कर लीजिए। ऐसे कौन से 2 कीज है जो दरवाजा नहीं खोल सकते? 2 कीज दैट कैन नॉट ओपन अ डोर। You want to tell me the answer? Okay, रुको, हम आपके पास आ रहे हैं। भाग के। सोचो, हाँ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप लोग बच्चे नहीं हो, आंसर नहीं दे सकते हो, प्लीज प्रॉम्प्ट मत कीजिए। चलो, कौन बता रहा था? किसने यहाँ से हाथ खड़े किए थे जवाब देने के लिए? हाँ चलो। नाम बताओ पहले बेटा। सबसे पहले आपका नाम बताओ। रईस। क्या बात है, रईस के लिए 2 जोरदार तालियां पहले तो। बताओ 2 कीज जो दरवाजा नहीं खोल सकते। वो कौन से 2 कीज हैं जो दरवाजे नहीं खोलते? चाबी ताला। अरे बेटा। Anybody else? सॉरी रईस, ये आंसर रईस नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम। एनीबॉडी एल्स? अरुण। अरे नहीं, नॉट अरुण। अरुण बच्चा नहीं है। अरुण के बच्चे हैं। अरुण के बच्चे हैं। ही आपको बैटमैन। ओके, कम। बैटमैन। What's your good name? My name is Sanib. ओके, कौन सी वो 2 कीज हैं जो दरवाजे नहीं खोलते? Monkey and donkey. क्या बात! सुपर्ब! आ जाओ इधर आप। चलो, आ जाओ। आप फटाफट से वहां पहुंचो। आ जाओ। गूगल किया है? नहीं, ये चीटिंग है यार, चीटिंग किया है तुम दोनों ने। कम। नहीं यार, उसने गूगल नहीं किया। नहीं किया है ना गूगल। ये कौन बोला? सर आपने बोला ना। आपका नाम बताओ। ये मैम, ये वो स्टूडेंट हैं, बड़े ही होते हैं। ऑल द अडल्ट्स ओनली मिस द चिल्ड्रन आर वेरी बैड। नहीं, ये वो स्टूडेंट है जिनके कम मार्क्स आए, बाजू वाले को देख के मैडम इसको तो आपने सही आंसर दिया है। ये वो है। सर आपका नाम बताओ, पहले मैं आपसे बात करूंगा एक 2 सवाल। नहीं बेचारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, एक सेकंड का प्रेजेंट तो देने दो। आपका प्रेजेंट है, वेलकम। आपको कुछ कहना है? खाली एक फोटो। कौन फोटो निकालेगा? फोटो आप देखना, कल गूगल पे आएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, मेरे को एक टिप लेना है पहले क्वेश्चन पूछने से पहले। टेक्निकल क्वेश्चन था। ओके, चुप रहो। ऐसे कितने सारे महीने में 28 डेज 28 दिन कितने महीने में होते? 2 इसने बोला 2 बेबी, यू सेड 2 बोला, नंबर 2 बोला। हाँ, आपका आंसर
February. Wrong answer. Wrong answer. You want to answer? Okay, what's your name? Hamza. February. सिर्फ फरवरी में 28 डेज होते हैं. नहीं. Wrong answer. ठीक से सोचो guys. It's a very difficult question. What's your name? जियान. Okay, कितने कौन से महीने में 28 दिन होते हैं? February. Sorry. नहीं baby, wrong answer. What's your answer? आप बोलो, आपका नाम क्या है? 12. मनन. भरत. क्या है नाम? Alia, we got the answer. कौन? Hi, what's your name? कैफ. कितने कौन से महीने में 28 दिन होते हैं? कटरीना कैफ. 12. हाँ? 12. मतलब सारे महीने में 28 डेज होते हैं ना गाइस. हाँ, तो दो क्यों बोला? चलो, कम. चलो आ जाओ. क्या? ये तुम मतलब हम लोग शो पे आ गए. चलो. केबीसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कटरीना कैफ आ गए हैं. आ जाइए. आप भी चिकनी चमेली पे डांस करोगे हमारे साथ? नहीं, कैफ नाम में आपका डांस करना पड़ेगा. अच्छा, ओके, ऑल द बेस्ट. मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सही आंसर दिया है. 50 गलत आंसर. एक किस. मैंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि मैं सिर्फ लड़कियों को किस दूंगी. बट आप नीचे अपने घुटनों पे जाओ जैसे प्रपोज करते हैं. हाँ, और आप मेरे हाथ पे किस दे सकते हो. अच्छा, ये हुआ समाप्त मेरा क्वेश्चन. आई डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस. अब आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछिए. चलिए, इन सारे बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं. ठीक है, और ये रैपिड फायर राउंड करते हैं. मैं फटाफट से आपसे सवाल पूछूंगा. आपको सोचने का टाइम नहीं है, फटाफट से आंसर देते रहना. ठीक है, रैपिड फायर रैपिड क्वेश्चन. रैपिड फायर रैपिड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप? व्हाट टाइम डू आई गो टू स्लीप? यस. कल रात मैं सोई थी क्योंकि मैं लैंड हुई थी रात को 10 बजे. तो मैं सोई थी रात को 12 बजे. पर यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ सोने के लिए एटलीस्ट बिट बाय 10:30 11 लेटेस्ट. उठते कितने बजे हैं? और डिपेंड्स. जिम जाना है तो 8 बजे उठती हूँ या 9 बजे उठती हूँ. बट यूजुअली आई ट्राई टू गेट अप बिटवीन 9 and 10. ओके, व्हाट इज योर शू साइज? मेरा शू साइज? यस. पता नहीं. तो आप पहनते कैसे? ओके, चेक करो. कुछ 5 या 6 के बीच में. कभी आप काम करते वक्त अपना पेन चबाते हैं? हाँ, मैं हमेशा चबाती हूँ और फिर इंक सब चेहरे पे आ जाता है. कैसा टेस्ट कैसा सही? इंक का बहुत खराब है. प्लीज ट्राई मत कीजिए. डोंट ट्राई दिस एट होम. आलिया का पेट नेम क्या है? आलू का चालू. बटाटा वड़ा. आलू वड़ा. आलू के आसपास जितना भी आप नाम क्रिएटिवली सोच सकते हो तो मेरा वो पेट नेम है. यू आर अ ममा's daughter or daddy's girl? आई एम मम्मा's गर्ल. ममा's girl. ओके. आप अपने जूते के फीते खुद बांधते हैं? क्या? आप अपने जूते के लेसेस को खुद टाई करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स. पक्का ना? डिपेंड करता है एक्चुअली. अगर मेरे हाथ में कुछ है तो फिर कौन करता है? कोई भी मेरे जो पास है. आलिया का फेवरेट पास टाइम? सोना. स्लीपिंग. आलिया's हॉबी? स्विमिंग. ये बहुत मेरे को एज स्पॉट पे डाल दिया मुझे नहीं पता मेरा हॉबी क्या है. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आलिया's ऑल टाइम फेवरेट मूवी? आलिया's ऑल टाइम फेवरेट मूवी इज कुछ होता है. मुझे लगा था इस बार तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर आंसर आएगा. मतलब ये हर किसी की पहली मूवी. हाँ, तो नहीं हो सकती. नहीं हो सकती? नहीं. पक्का? हाँ. आप मुझे एक चांस देके देखो. मतलब मेरी तो हमेशा मेरी पहली वाली ही फेवरेट रहेगी. ऑलराइट, ह्यूज अप्लॉज फॉर आलिया. क्या हो गया यार? जोरदार तालियां हो जाएं. क्योंकि मेरे को ऐसा फीलिंग हुआ है कि ये जो क्वेश्चंस आपने मुझे पूछा है ये आपने पूछा है. आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है? मुझे तो ये दे दिया था. नहीं अरुण, आप बाद में. ये इसको मेरे दोस्त को पूछना है. आओ आप. मेरी नेक्स्ट पिक्चर, वेरी गुड क्वेश्चन. मेरी नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है? वैसे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि आज आपका दिन है. पर ये मेरी नेक्स्ट पिक्चर है. डियर जिंदगी. पहचानते हो इन इस हाँ बहुत ही हैंडसम आदमी को. और उनके पास मैं भी एक छोटी सी हूँ पिंक पहनते हुए. तो ये हमारी पिक्चर है. 25 नवंबर को रिलीज हो रही है. बस उसके बाद इसके बारे में और बात नहीं करेंगे. अनदर क्वेश्चन मेरे बारे में. मैं हूँ यहाँ अभी. मैं चली जाऊंगी फिर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो. किसी को क्वेश्चन नहीं पूछना है. फिर बाद में मत बोलो शिट यार मुझे वो क्वेश्चन पूछना चाहिए था. कभी स्कूल में होमवर्क ना करने पे डांट या पनिशमेंट मिली है? ऑफ कोर्स. क्या मिला था पनिशमेंट में? मुझे डेस्क साफ करना था. अपनी या सबकी? 1 हफ्ते के लिए. एक्चुअली मैंने क्या किया था ना, ऐसे करना नहीं चाहिए बट मैं स्कूल जाती थी पर मैं सो जाती थी जाके बाथरूम में.
तो एक दिन टीचर ने मुझे पकड़ लिया बाथरूम में सोते हुए। टीचर भी वहाँ सोने गई थी? नहीं, अच्छा, चेक करने गई थी कि एक लड़की मिसिंग है, क्यों मिसिंग है। तो एक हफ्ते के लिए मुझे डेस्क साफ करना पड़ा। वेरी बैड थिंग टू डू, प्लीज मत करना कभी। क्लास में मत सोना, घर पे सोना। ओके, जोरदार तालियां, दिस इज फॉर यू। आपने सही जवाब दिए सारे। थैंक यू। ऑलराइट, सो आपका समय इन बच्चों के साथ कैसा रहा? मैं एक्चुअली बहुत आई डोंट नो, मुझे और टाइम स्पेंड करना है यहाँ पे। तो अगर आपको और क्वेश्चन पूछना है तो मैं आंसर दूंगी। पूछ लो। कौन पूछना चाहता है? अच्छा, उधर कोई हाथ उठा रहा है। क्या नाम आपका? सैफ। कैफ और सैफ भाई हो? नहीं, अच्छा जोर से पूछो ना, मैं मुझे सुनाई देगा। आपका फेवरेट फूड कौन सा? आलू। हाँ, आलू ही है। मैं आलू फ्राई नाम का एक डिश बनता है मेरे घर पे, वो मेरा सबसे फेवरेट फूड है। पर वैसे मैं सब खाती हूँ, दिखता नहीं है पता नहीं, बट मैं सब खाती हूँ। हाँ, आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? ओह, गुड क्वेश्चन। आपका फेवरेट हीरो कौन है? मेरा पता नहीं। शाहरुख खान। तो आपकी और मेरी तो बहुत मिलती है। मेरी भी फेवरेट शाहरुख खान है। वाओ, फैबुलस ना। हाँ, सब लोग ताली मारो। एनीथिंग एल्स? पब्लिक डिमांड पर एक चीज। क्या? डांस? आपने आगे बोला था कि आप बच्चों के लिए गाना गाएंगे जरूर। ओह हाँ, सॉरी। लेकिन आपके काफी सारे गाने आ चुके हैं। क्या डियर जिंदगी में भी आपका कोई गाना सुनाई देने वाला है? शायद, वो तो आपको कान खुला रखना पड़ेगा। बट पब्लिक डिमांड का गाना तो हाँ, बोलो। सेल्फी लेना है? हाँ, सब लेंगे, पक्का लेंगे। बट गाना गाऊंगी मैं। कौन सा गाना गाऊं आप बताइए? राधा इज वेरी डिफिकल्ट। गुड न्यू सॉन्ग समझावा। ये तो 50 रिक्वेस्ट आ गए हैं। कौन सा? लव यू जिंदगी। स्टॉप इट। नो, एक्चुअली बोलो, एक थिंक इन 1 सेकंड, कौन सा गाना गाऊं मैं? लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, गाओ। उसमें रैप भी है। उसमें रैप भी है, पर मैं रैप नहीं गाऊंगी। वो रैप के साथ ही शुरू होता है। मैं ट्राई करती हूँ। I can't do that. 1 2 3 देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बन मेरी कहूँ तो अब ना कुछ भी कहा नहीं जा। कम you all come and do the chu with me. come चुक गाड़ी मेरे साथ करो। आ जाओ। आपके बाल में कुछ छुपा के मत लाना। चलो। हेलो। तुम लोग मेरे बीट पे करोगे ना, मैं ज्यादा फास्ट जा रही हूँ तो मेरे को बोल देना। मेरे बीट बजाएंगे। ओह, बीट पे बूट। ओके चलो। 1 2 3 देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बन मैं कहूँ कि अब ना कुछ भी कहा नहीं जाए। चल नाच दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंटन, गोली चल गई ढाल। नखरे विलती ईगो में रहती, नखरे विलती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल टंग टंग टडंग टडंग टंग, चुल टंग टंग टडंग टडंग, चुल टंग टंग टडंग टंग, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल टंग टंग टडंग टडंग टंग, चुल टंग टंग टडंग टडंग, चुल टंग टंग टडंग, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। और मेरे को नहीं आता है। सुपर्ब। साथ में ज्यादा करना चाहिए हमको। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग दैट वी डिड। हाँ, सबको प्राइज मिलेगा। पता नहीं। थैंक यू। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप लोग यू नॉट साउंडिंग कन्विंस्ड, तो एनर्जी बहुत कम हो गया अभी क्राउड में। हाँ, और एक वंस मोर।
अभी क्या नहीं, तुम लोग यहाँ पे रहो, अच्छे सपोर्ट सिस्टम। कौन सा समझावा तो नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं, सब में होगा। सैटरडे हाँ नहीं तुम बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, एक आंसर दो। कुछ होता है, क्या होता है? समझावा बोलना गाओ। नहीं बोला किसी ने। हाँ ओके, क्या करना है? Okay. मैं गाऊं? 1 2 3 छुट्टी आवे छुट्टी, तो लिरिक्स याद नहीं है, समझावा ही गाते हैं। अच्छा ठीक। 1 2 3 हाँ वेट 1 2 3 गो। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार हार तेरा, तू दिल तू हो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार हार मेरा, मैं करूँ इंतजार हार तेरा, तू दिल तू हो जान मेरी, जान मेरी हो जान मेरी, ना हो गया अभी। हाँ शायर प्लीज बोलो। आ जाओ प्लीज, दिस रिक्वायर्स अ हग। क्या बोला तुमने? फिर से रिपीट करो माइक पे। सुबह से शाम होगी, शाम से रात होगी, सुबह से शाम होगी, शाम से रात होगी, अरे मुझे दफनाने वाले मुझे ऐसी जगह दफनाना जहां आलिया जी से मुलाकात होगी। आज तक किसी ने मेरे लिए शायरी नहीं की है, सो आई एम वेरी फ्लैटर्ड। हाँ हम लोग का एक साउथ बीट है, उसमें डांस करो। डांस करना है, चलो अभी आप लोग बजाओगे, मैं डांस करूंगी। थैंक यू सो मच धारावी रॉक्स आर अमेजिंग। आपको कैसा लगा ओवरऑल अभी? आई थिंक काफ़ी सालों से, एटलीस्ट जब से मैं आई हूँ 4 साल हो गए,
मैंने कभी किसी के साथ चिल्ड्रंस डे स्पेंड नहीं किया है, ये पहली बार मैं कर रही हूँ और मैं हमेशा करना चाहती थी क्योंकि आई रियली बिलीव कि मैं एक चाइल्ड ही हूँ, मैं बच्ची हूँ और चिल्ड्रंस डे आई थिंक इज़ द बेस्ट डे। हर दिन चिल्ड्रंस डे होना चाहिए। बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने आपके साथ अपना पहला चिल्ड्रंस डे स्पेंड किया और अगर इंशाल्लाह हम लोग हर साल ऐसे सेलिब्रेट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू गाइज। और आप बस खुश रहना, हैप्पी रहना, ऐसे गाना गाते रहना, डांस करते रहना और गेम्स थोड़ा सा कम खेलना, आँख को मतलब स्ट्रेस होगा, बट जस्ट बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। लेकिन हम यहाँ से निकले उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर विनोद शेट्टी टू प्लीज बी हियर, द फाउंडर ऑफ एकॉन फाउंडेशन। जोरदार तालियां हो भैया, इन्होंने बहुत सारी मेहनत की है आपकी आज की शाम के लिए। सर a big thank you to all these kids। और ये जो बच्चों ने जो बजाया और हमारे सब धारावी के बच्चे, यही जो टैलेंट है धारावी में, बहुत सारा टैलेंट है और आज आलिया जी ने जो उनको एक एनकरेजमेंट दिया है, मुझे लगता है ये बच्चे बहुत बड़े बड़े स्टार्स बनेंगे। और आप सभी लोग मीडिया का सपोर्ट है कि ये जो गरीब की जो बस्ती है जो धारावी, उसको उजाड़ने मत देना और इसी तरह बम्बई को मजबूत करना। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी सर, आपने अभी कहा है कि मैंने यहाँ आके इनको इंस्पायर किया। आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड, मुझे यहाँ आके इनसे इंस्पिरेशन मिली है। आपको देखकर, आपका टैलेंट देखकर, आपका जनरल नॉलेज देखकर, कैफ साहब और आप जो भी दूसरे वाले जिसने आंसर दिया, आप बहुत ही शार्प और बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही स्मार्ट हो एंड वेरी वेरी टैलेंटेड गाइस। सो कीप इट अप, डोंट लेट दिस स्टॉप। और आपने खुद के लिरिक्स लिखे विच आई थिंक इज वेरी वेरी कमेंडेबल। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड आलिया मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सारे बच्चे लोग, जोरदार तालियां आपके लिए। यू आर अमेजिंग ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डियर मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग इट सो ब्यूटीफुली। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जोरदार आवाज आ जाए, हमारे अंदर भी बच्चे हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाय, लव यू। क्या फोटो ना, चलो आ जाओ।